आप देख रहे हैं CNBC आवाज और यह है फॉरेन पॉलिसी क्लासरूम या कहिए डिप्लोमेसी महाकुंभ का आखिरी सेशन। और हमारे साथ बेहद विशेष मेहमानों का एक पैनल है जहां तय होगा कि इस क्लासरूम में हमको, दर्शकों को, आपको और हमारे मेहमानों को कितने नंबर मिले ये बताने में कि भारत और दुनिया इस संदर्भ में भारत का आगे का रास्ता कैसा है और हमको क्या करने की जरूरत है और उसको कितनी बड़ी प्रायोरिटी हमारे पॉलिसी मेकर देते हैं। बिल्कुल। और इस खास सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी वेस्ट सुधीर व्यास, विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी एक्सटर्नल पब्लिसिटी सैयद अकबरुद्दीन, पूर्व डिप्लोमेट नलिन सूरी, साथ ही हमारे साथ होंगे M&M ग्रुप के चीफ रिस्क ऑफिसर के वैद्यनाथन, टाटा स्टील के वाइस चेयरमैन B मुथुरमन और नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट नेटवर्क 18 प्रवीण स्वामी। तो पूरा पावर पैक्ड पैनल है हमारा जिसमें हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से आगे रास्ता चल रहा है भारत की फॉरेन डिप्लोमेसी के लिए। लेकिन इससे पहले हम दिखाएंगे आपको एक खास बातचीत संजय की फॉरेन सेक्रेटरी रंजन मथाई के साथ। विदेश सचिव का रोल दरअसल एक उस बड़े ऑर्केस्ट्रा के मैस्ट्रो की तरह से होता है जिसका काम होता है कि हर धुन, हर बात, हर मैसेज को वो कंट्रोल कर सके और स्ट्रेटेजाइज कर सके। मथाई साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि फॉरेन पॉलिसी के बारे में आपने करीबन 3 डिकेड्स इसमें गुजार दिए हैं। जब शुरू हुए थे तब और अब फॉरेन पॉलिसी बनाने का जो काम है उसमें एक बड़ा बदलाव क्या आया आपके हिसाब से, जो डिफाइनिंग बदलाव आप कहेंगे? I would say the main challenge, of course, is the new framework in which we operate both globally and domestically. The world has completely changed from the situation we dealt with 4 decades ago when I joined the service, and we have to adapt to the fact that there is a huge degree of globalization. The world has become more integrated in some ways, but the political divisions and the rivalries and the competition remains as sharp. So you have to function within that framework. I would say within our own country, the number of stakeholders has increased. Globalization has had a very major impact. The reform program has led, just to give you a figure, in 1991-92, people used to say about 15% of our GDP, entire GDP, was linked to imports and exports. Today, with a GDP almost 4 times the size of 1991, the figure is 45 to 50%. So Indians, people, we are much more affected. People travel. We are much more regarded around the world as a country with influence, and therefore our policy has to fit into that. But that means the sections of our own society who have a stake in it have a voice, and they need to be drawn into the broad framework of policy making. There is a great deal of interest in the media, in parliament, in the business world, and now increasingly with many state governments. As you know, as many as 16 of our states have either a border with a foreign country or are linked very close through the maritime boundaries to foreign countries. बहुत लोगों को ये इंप्रेशन है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी का जो पूरा एस्टैब्लिशमेंट है ये थोड़ा सा एक एक्सक्लूसिव काम है, बड़ा स्पेशलाइज्ड काम है और ये जो स्टेक होल्डर हैं इनको ठीक से शामिल नहीं किया जाता। इकोनॉमी और ट्रेड एक एस्पेक्ट है उसका, सिक्योरिटी और डिफेंस उसका दूसरा एस्पेक्ट है। तो आपको लगता है कि अब इस पर बहुत तेज़ी से बात करके पूरे तौर तरीके बदलने की ज़रूरत है कि एक इंक्लूसिव कन्वर्सेशन हो और लगातार होता रहे? लगातार होता रहता है। I must tell you that foreign policy, the foreign policy is really the instrument through which you use your presence in the world to maximize your own advantage, and therefore it is designed to help the process of national development, which means that whether you talk about the economic policy or the development policy, we do not act in a vacuum. We work very closely with the Ministry of Commerce, with the Ministry of Finance. We have mechanisms to integrate their views into how we deal with these issues worldwide. Similarly, on matters of national security, which are equally important, we work very closely with the Ministry of Defense, with the Ministry of Home Affairs, with the National Security Council, the Prime Minister's Office. Obviously, we take all these groups, these ministries and their views into account when we formulate even diplomatic strategy. So I think there is nothing exclusive about what we do. In fact, I would say we are one of the most inclusive ministries in the government of India. जी बिल्कुल। इस वक्त जब कहते हैं कि इस वक्त भारत के लिए जो इतना तेजी से बढ़ रहा है
कहते हैं ये ग्रेट पावर बनेगा, कोई रोक नहीं सकता है। सोचना यह है हिंदुस्तान को कि इसको ग्रेट पावर बनाना है कि नहीं बनाना है। इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा पॉलिसी चैलेंज इस वक्त चीन है? और चीन के बारे में मैन ऑन द स्ट्रीट से आप सुनते होंगे और मीडिया उसको रिफ्लेक्ट करता है कि सीमा पर आर पार क्यों नहीं कर लेते। उस तरह के नॉइजी डिबेट में हम बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन मान लीजिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहे हैं और 16 राउंड हो गए हैं। जहां हम नेचुरल रिसोर्सेज देना चाहते हैं 10 साल से वहां चाइना पहले पहुंच जाता है। चाइना के साथ रिलेशनशिप को कैसे आगे चल के हम मैनेज करने जा रहे हैं, इसको लेके लोगों में बड़ी क्यूरियोसिटी है। Well, curiosity hai, that is true. I think what we are trying to do with China is quite transparent. We have always explained that we seek a relationship with China that is based on a mutual understanding of each other's sensitivities and interests, that enables us both to make progress. As the Prime Minister has said, there is enough place in the world for both of us to grow. And also to develop our bilateral relationship in a way that maximizes our own advantage. So I think we are conducting it on a number of levels. As you referred to the special representatives talks on the boundary, there is a regular exchange between the Prime Minister and the leaders of China. There is a regular dialogue between them. As you are aware, the Prime Minister of China made his first visit outside China after becoming Prime Minister to India. And we are looking forward to the visit of our Prime Minister to China later in the year. So I think this at the political level, the boundaries we have already referred to the special representatives, but we also have a strategic economic dialogue between the Deputy Chairman of the Planning Commission and his Chinese counterpart. So we have also cultural dialogues, we have scientific exchanges, all these are going on. During the recent events which have taken place on the border, yes, certainly there was a great degree of concern and interest, but I'd like to assure you those negotiations were managed very carefully, and we ensured that the status quo has been maintained and that peace and tranquility is to be maintained on the border. That is the principle on the basis of which we are proceeding. और यहाँ पर फॉरेन सेक्रेटरी रंजन मथाई बहुत सारी बातें करते हुए ये भी कहते हुए कि चीन के साथ कैसे रिश्ते बढ़ रहे हैं। अब चलते हैं हमारे पैनल के पास और शुरू करते हैं नलिन सूरी से, जो एम्बेसडर रहे चाइना के। सूरी साहब, जो चीन के साथ रिश्ता है, आपको लगता है कि आगे जाते हुए, क्योंकि इस सेशन में हम वे अहेड की बात कर रहे हैं, एक हॉलमार्क होने वाला, एक लिटमस टेस्ट होने वाला है भारत की फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस से जो चीन के साथ रिश्ते बन रहे हैं? देखिए, चीन के साथ जो हमारा रिश्ता है वो मेरे लिहाज से हमारा सबसे महत्वपूर्ण बायलैटरल रिश्ता है। और आप इस तरह से देखें कि लिटमस टेस्ट है कि नहीं है तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हमारी विदेश नीति की जो पहलू हैं चीन की तरफ, और इसमें सक्सेस होगा कि नहीं होगा ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चीन के साथ हमारे संबंध बेहतर हों, रिश्ते बढ़ते रहें। कठिनाइयाँ आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि इस वक्त चीन को भी भारत की काफ़ी ज़रूरत है। हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी देश है। हम लोग कई बार भूल जाते हैं कि हमारे पड़ोस में सबसे बड़ा हमारा देश जो पड़ोसी देश है वो चीन है, वो पाकिस्तान नहीं है और कोई देश नहीं है। तो इसमें विदेश नीति की सफलता या असफलता पर इसका असर तो पड़ेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ गौर करनी होगी, विदेश नीति की आप जैसे आगे बढ़ने की आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें 4 धाराएं हैं। एक तो सिद्धांत हैं, सिद्धांत बदलते नहीं हैं, और खास करके भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत बदले नहीं हैं। फिर उद्देश्य हैं, उद्देश्य बदलते रहते हैं, कोर उद्देश्य नहीं बदलते हैं लेकिन बदलते हैं। तीसरा है वातावरण, किस वातावरण में बातचीत हो रही है। अब जैसे चीन के साथ वातावरण 5-6 साल पहले बेहतर थे, अब पिछले 2-3 साल से इतने अच्छे नहीं हैं। आगे देखते हैं कैसे होंगे, चीन के आगे भी कई कठिनाइयाँ हैं। और चौथा है हमारे सामने चुनौतियाँ कौन सी। चीन के साथ चुनौतियाँ बहुत हैं, लेकिन कोऑपरेशन के रास्ते भी बहुत निकल सकते हैं। सो इसमें ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है फॉरेन ऑफिस के सामने चीन के साथ रिश्ते बढ़ाने का। बिल्कुल, चीन की बात हुई, और जो दूसरा बड़ा पक्ष है इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में, सुधीर व्यास साहब के पास आना चाहूँगा। वो अमेरिका के संदर्भ में बात करूँगा, वो ये कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को और आर्थिक एजेंडा को जितना बड़ा महत्व देना चाहिए हमारे फॉरेन पॉलिसी के टोटल नैरेटिव में, उसमें हम देर हैं और थोड़ा सा पीस मील है। देखिए,
पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी देश की कूटनीति उसका उद्देश्य ये है कि राष्ट्रीय हित को बढ़ावा दें। अब हमारा राष्ट्रीय हित क्या है, अगर वो पहचान लें तो उससे आगे का रास्ता बिल्कुल जाहिर हो जाएगा, साफ नज़र आएगा। आपके इस मुल्क, हमारे मुल्क में अभी भी गरीबी है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो हमारे गवर्नमेंट का है वो है इंक्लूसिव ग्रोथ, फोकस इज़ ऑन द इकोनॉमी, और इसलिए इकोनॉमिक डिप्लोमेसी विल हैव टू प्ले अ रोल। सबसे महत्वपूर्ण रोल हमारी कूटनीति का इकोनॉमिक स्फीयर में होगा। अब चैलेंजेस क्या हैं हमारे? एनर्जी, वाटर, फूड, एजुकेशन, स्किल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, these will define the future parameters. इसके लिए आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, conducive international environment to enable us to proceed forward on these areas. उसके लिए साउथ एशिया में, पूरी दुनिया में, globally, you will require a balanced, fair trading system. You will require peace along our boundaries. हिंद महासागर में आप 70% आपकी एनर्जी प्रोडक्ट्स जहाज़ों पर आते हैं, आपका ट्रेड जहाज़ों पर आता है। हिंद महासागर में शांति बनी रहे, स्थिरता बनी रहे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी engagement, now infrastructure, attracting investment, this will be the priority. कोर ये होना चाहिए। So, and as you can see, बिल्कुल clear है कि priority remains economic, and that it will impact on politics. Political diplomacy और economic diplomacy में ज़्यादा अंतर नहीं है। उद्देश्य वही है, राष्ट्रीय हित को बढ़ाना। बिल्कुल। आइए यहाँ वैद्यनाथन साहब को शामिल करते हैं। आप रेगुलेटरी सिचुएशन भी जानते हैं वैद्यनाथन साहब, और आप अब उस बिजनेस में है जहाँ यहाँ धंधा करने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा कोशिश करता है, फॉरेन इन्वेस्टर से डील करता है। क्या माहौल है, क्या मूड है हमारे बारे में इस वक्त? First and foremost, applaud the minister, the ministry and your channel for taking up a topic like foreign policy, which is a very important subject. Please bear with me. My best strength is not Hindi. Let me put it in context, and having heard your interview with the minister. One of the mistakes that we often make is we start evaluating foreign policy on a day-to-day basis. Just like, for example, your channel for stock market traders or investors is very different. If somebody looks at your channel as an investor on a daily basis, he will lose perspective. And a long-term investor looks at 3 to 5 years. And in foreign policy, that long-term is 10 to 15 years. So I think we need to recognize this in a certain context. India's trade has gone up 7-fold in 15 years. The challenge for India, and I think it's a challenge for government of India, our country has grown 10 plus times in 20 years, but the government bandwidth has not kept pace. And it's particularly felt in External Affairs Ministry. It's a very specialized area. Historically, our stance has been the flag will follow trade. So if you say that in Hindi, pehle danda fir janda. But we need to change that. And to change that, we need to do two things. One, we have to invest in bandwidth. One of the things the ministry has done very well is in select embassies, they have brought in Commerce Ministry representatives. We need to have that across. And we need to supplement that with technical resources. We need to bring in all kinds. So if you're doing a project evaluation, you need project evaluation expertise in those markets, in those countries. So bandwidth is one challenge that we need to. The second, given that
generally foreign policy is not a publicly discussed issue from a government standpoint. World over, everybody has done three things. They've used business, they've used the diaspora, and they've used news and media. I believe there is a fourth piece that needs to come in, and it's very useful, especially there are certain countries which evaluate India based on news media reports. And news media reports is not something that you can control. They have their own compulsions on whether they are moderated or जी हम लौटते हैं आपके पॉइंट पे और काफी वैलिड पॉइंट है कि यहाँ पर जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनको भी बैंडविड्थ बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर प्रवीण स्वामी को भी शामिल करना चाहूंगी। प्रवीण, आपने अब तक की चर्चा सुनी है और ब्रॉडली व्यू ये बन रहा है या सवाल ये बन रहा है कि आगे की दिशा क्या है हमारी, क्या जो इकोनॉमिक पावर है हमारा या ट्रेड का पावर है उसको हम कैसे मैक्सिमाइज करें, बेस्ट यूटिलाइज करें? प्रवीण। तमन्ना, पहले हमारी दिशा तय करने के पहले हमें समझना चाहिए कि हम चाहते क्या है, किस दिशा में जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हमारी भारत की तरक्की के सामने दो बहुत बड़ी बाधाएं हैं, दोनों डोमेस्टिक हैं। पहली है कि भारत के तरक्की के रास्ते कई सारे लैंडमाइन हैं। वो लैंडमाइन है हमारे मुल्क में सांप्रदायिक तनाव, हमारे मुल्क में जातिवाद, हमारे मुल्क के अंदरूनी जो कई सारे प्रॉब्लम हैं, और हमारी फॉरेन पॉलिसी में हम वो चीज़ें करना चाहते हैं जिससे इन फॉल्ट लाइन्स पे, इन टेंशन्स पे कम से कम प्रभाव हो। दूसरा, हम चाहते हैं कि एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट बने। एनेबलिंग एनवायरनमेंट से मेरा क्या मतलब है, पश्चिमी मुल्क जब थे, एक उदाहरण देता हूँ, एक मसला देता हूँ। पश्चिमी मुल्क जब इंडस्ट्रियलाइज कर रहे थे तो तेल लगभग $10 बैरल पे मिल रहा था, इसलिए उनके फैक्ट्रियाँ बहुत सस्ते एनर्जी कॉस्ट पे चल पाए। हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन और चीन की इंडस्ट्रियलाइजेशन उस वक्त हो रही है जब तेल के प्राइस $100 प्रति बैरल से ऊंचे हैं और ऊंचे रहेंगे। पूरी दुनिया में पिछले 50 साल से तीसरी बात यह है कि एक लगभग स्टेबल ऑर्डर रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन अब कई जगहों में देख रहे हैं, खास तौर से पश्चिमी एशिया में, कि वो स्टेबल ऑर्डर टूट रहा है। एक नया वर्ल्ड पावर चाइना पैदा हो रहा है। किसी को ये पता नहीं है कि आगे जाके क्या होगा। हमें मेरे हिसाब से तीन चीज़ें करनी चाहिए। पहली चीज़ है, हमें सिक्योरिटी डिप्लोमेसी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारे इमीडिएट रीजन में, पाकिस्तान में और कई हमारे करीबी मुल्कों में ऐसी चीज़ें हो रही है जिनके वजह हमारे डोमेस्टिक टेंशन आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात है, जैसे कि थोड़ी देर पहले व्यास साहब ने कहा था, इंडियन ओशन में, मिडिल ईस्ट में ऐसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिससे हमारे एनर्जी और ट्रेड सिक्योरिटी पे असर पड़ सकता है। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात है कि हमें ये समझना चाहिए कि दुनिया बहुत तेज़ रफ्तार से बदल रही है। अब हम ये नहीं कह सकते कि आगे जाके क्या होगा, दुनिया में आखिर कोई नहीं है जिसने कल देखा है, लेकिन हमें तैयार होने की कोशिश करनी चाहिए। पिछले 15 साल से जो हमने तरक्की की है, इस अजम्पशन पे की है कि दुनिया एक तरह से स्थिर रहेगा, कि ऐसी चीज़ें होंगी जिनसे हमें कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। लेकिन पिछले 2-3 सालों में पॉइंट्स यहाँ पर प्रवीण, काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, वापस आके पैनल से भी पूछेंगे इस बारे में। साथ में ही इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पर थोड़ा और फोकस लौट के बात करेंगे। टाटा स्टील के बी मुथुरामन से जाएगा नहीं। आप जुड़े हैं हमारे विशेष फॉरेन पॉलिसी क्लासरूम में और यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की। इस क्षेत्र में टाटा ग्रुप शायद एक फ्रंट रनर रहा है और अब जुड़े हैं हमारे साथ टाटा स्टील के बी मुथुरामन। मुथुरामन साहब, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आज जैसे कि हम बात कर रहे थे कि विदेश नीति और आर्थिक नीति साथ साथ चलती है, आपका क्या कहना है इस पर? विदेश नीति में ट्रेड का कितना बड़ा एक रोल होता है? You know, I believe that in any country's foreign policy, trade should play a very important and significant part. In fact, of all the considerations, I believe that trade is the most important consideration in determining a country's foreign policy. See, if you see around the world, economic prosperity and converting that economic prosperity to the well-being of the people of the country, for doing that, you need to depend upon a lot of inputs.
And at any given point of time, the country may not have all the inputs. The inputs could be markets, it could be technology, it could be natural resources like oil or minerals or natural gas and so on. So at any given point of the time, a country will not possess everything. So a country needs to look at elsewhere in the world, to other countries of the world, to get the inputs that it needs, add those inputs to the inputs that it already has in that country, and convert those inputs into economic prosperity and well-being of its people. And in order to do that, you need to have good relations with those specific countries which possess these, which is why I believe that trade and the countries with whom such value-added trade can be done is a very important and key component in formulating a foreign policy of a country. And India cannot be an exception. बिल्कुल। हमने 3 राय सुनी, वैद्यनाथन साहब, मुथुरामन साहब, प्रवीण स्वामी। व्यास साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा ये सवाल लेकर के कि अब आज के माहौल में ये कितना सिग्निफिकेंट कंपोनेंट हो गया है कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर बाहर जाकर के काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान की हैसियत और प्रेजेंस को बढ़ाने में ये कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, और सरकार कितना कॉम्प्लीमेंट कर रही है, कितना सपोर्ट कर रही है इंडियन बिजनेसेस को बाहर जाने में। आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा है। आज की दुनिया इज अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, देयर इज अ कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, इट इज आल्सो अ टाइटली ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, एंड इट्स अ ग्लोबलाइजेशन इज अ टू वे प्रोसेस। तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का बहुत महत्व है हमारी फॉरेन पॉलिसी में। आप देखिए, अगर आप, मैंने शुरुआत में कहा था कि नेशनल इंटरेस्ट्स आर द ड्राइवर्स ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। एनर्जी आप देख लीजिए, कोल वी आर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स, ऑयल वी आर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स, मिनरल्स वी आर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स। वी आर लुकिंग एट अफ्रीका फॉर एग्जांपल इन अ वेरी बिग वे, और लैटिन अमेरिका। अफ्रीका में हमारा जो एंगेजमेंट है, टुडे वी हैव मोस्ट ऑफ द बिग बिजनेस हाउसेस प्रेजेंट इन अफ्रीका, वेदर इट इज द टाटा ग्रुप, वेदर इट इज Airtel, whether it is Larsen and Toubro, pharmaceutical companies, Shapurji Palanji, they are in infrastructure. ये उनका बहुत ही तगड़ा प्रेजेंस है अफ्रीका में। गवर्नमेंट की तरफ से हमारा अपना प्लेटफॉर्म है जो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट प्रोसेस कहलाता है। उसके साथ वी हैव अ वेरी वाइड रेंजिंग एंगेजमेंट विद अफ्रीकन कंट्रीज, बोथ कैपेसिटी बिल्डिंग, कम से कम 3 साल के पीरियड में, ओवर द नेक्स्ट 3 years, वी आर लुकिंग एट समथिंग लाइक 22,000 कैपेसिटी बिल्डिंग scholarships, training programs, institutions that are being built in Africa. And all this is a platform for our business to engage with Africa. हमारी लाइन्स ऑफ क्रेडिट जो हैं अफ्रीका में, करीब मेरे हिसाब से करीब over $5 billion worth of lines of credit have been extended to Africa. छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, पूरे कॉन्टिनेंट के लेवल पर प्रोजेक्ट्स हैं, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। सो इट्स अ वेरी वाइड रेंजिंग एंगेजमेंट। लैटिन अमेरिका में देखिए, लैटिन अमेरिका में भी हमारा प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है। आज आप देखें कि हम आवर डिपेंडेंस ऑन ऑयल फ्रॉम द गल्फ मार्जिनली बल्कि घट गया है, इन मार्जिनली। we are diversifying sources. Africa is the second largest, with Angola and Nigeria as major partners. Latin America, Venezuela is emerging as a major source for oil hydrocarbons. As the third largest, 16% of our energy imports come from Venezuela. तो आप देखिए कितना महत्व आप दे रहे हैं लैटिन अमेरिका। यहाँ पर व्यास साहब आपने बात की आर्थिक जो सहायता देते हैं, और इस पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक लेने का फिर से समय आ गया है। लेकिन इसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि जो भारत आर्थिक सहायता देता है इस रीजन में भी, उसका डिप्लोमेसी से कितना लेना देना है, कैसे ये साथ साथ चलते हैं। लौटेंगे जल्दी।
अब हम बात करेंगे जिन बातों पर चर्चा हुई है, एनर्जी सिक्योरिटी का जिक्र आया और हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट का सवाल आया। अकबरुद्दीन साहब, आपके पास आना चाहूँगा। सवाल यह है कि जिस तेज़ी से हमको काम करना है उसमें हम देखते हैं कि चीन हमसे पहले, मैंने इसकी चर्चा पहले भी की है, उन रिसोर्सेज को वो जाके एक्वायर कर लेता है, या अभी ईरान या मिडिल ईस्ट की पॉलिसी में भी जितना तेज़ी से हमको काम करना था, हम थोड़ा लेट से एक्टिव हुए हैं। एक डिकेड पहले हमको वहाँ एक्टिव हो जाना चाहिए था मिडिल ईस्ट में। तो क्या ये हुआ कि फॉरेन पॉलिसी में नॉन अलाइनमेंट और वेस्ट से ज़्यादा बातचीत में हम लोगों ने अंडर परफॉर्म किया मिडिल ईस्ट से बात करने में, या एनर्जी सिक्योरिटी को पहले से बिल्ड करने में? नहीं, आप जो कह रहे हैं ये मैं तो नहीं समझता हूँ ये सच है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जैसा आप कह रहे हैं, हम तो वहाँ पर कई अरसों से हैं, चाइना के वहाँ मौजूद होने से पहले से हैं। तकरीबन जब अब हमारे वहाँ पर 6 मिलियन हिंदुस्तानी नागरिक वहाँ पर हैं, हमारा ट्रेड आप लोग समझते हैं यूएस से या चाइना से सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर आप जीसीसी देखें जो पूरे ये 6 अरब कंट्रीज़ हैं, उनसे हमारा ट्रेड है 170 बिलियन। ये तो चाइना से डबल से ज़्यादा है और यूएस के तकरीबन डबल हैं अगर इवन सर्विसेज ले जाएं। तो आई थिंक ये परसेप्शन है, लेकिन ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है कि हम मिडिल ईस्ट में नहीं हैं। और अगर आप वहाँ किसी से बात करें, वो लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान और उनके जो रिश्ते हैं वो एक अरसे से हैं। अभी अभी विदेश मंत्री गए थे बगदाद, उन्होंने बस खुले हाथों से उनको रिसीव किया और कहा हम तो तैयार हैं। और ये बात तब कई मीडिया के दोस्तों ने उठाई थी कि शायद भारत देर से आया वहाँ पर, और हम भी ऐसे कुछ हिचकिचाहट के साथ उनसे कहें कि शायद आप लोग सोच रहे हैं कि हम देर से आए। तब उन्होंने ये इसको साफ किया कि नहीं, हम जानते हैं भारत को आपके पैदा होने से पहले से, क्योंकि जो रिश्ते थे हमारे, जैसे कि इराक में 90s तक सबसे बड़े प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स भारत के इराक में थे। अब ऑयल हम सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं ऑयल का इराक से, और इराक की जो स्पीड से जो ऑयल इंक्रीज़ कर रहे हैं, उन्होंने देख लिया है कि कौन इंपोर्ट कर सकते हैं, और उन्होंने सोच लिया है कि स्ट्रेटिजिकली कि बस भारत और चीन ऐसे 2 मुल्क हैं जो इंपोर्ट कर सकते हैं। इंक्रीज कैपेसिटी उनकी अब 3 बिलियन है, अब वो 8-9 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। कैपेसिटी किस में है दुनिया में, कहाँ पर ऐसी है? तो हम अपने स्ट्रेंथ्स को शायद नेगलेक्ट ना करें, और हमारी दोस्ती जो है, पुरानी दोस्ती, इनको भूलें ना। बस हम इसमें कंपटीशन ना सोचें, क्योंकि हमारे रिश्ते सालों से हैं और बहुत ही स्ट्रांग है। प्रवीण, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। हमने बहुत सुना था, वो हेडलाइन से गायब है, कि ईरान से पाइपलाइन आएगी, तो क्रिटिसिज्म ये है कि शायद अमेरिका ने कहा है भाई गो स्लो। हमको लगता है कि कजाकिस्तान में तेल के कुएं लेने हैं, चाइना जाकर के पहले ले लेता है। तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन लानी है, बात आगे नहीं बढ़ रही है। तो जिस फॉल्ट लाइन की, इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ की और एनर्जी सिक्योरिटी की बात अभी आप भी कर रहे थे और यहाँ भी हुई, उसको लेकर के हमारी पॉलिसी कोहेरेंस और स्पीड का क्या हाल है? देखिए, जहाँ तक स्पीड की बात है, पहली बात हमें समझना चाहिए कि मेजर पावर्स में से भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो शायद सबसे छोटी है। मेरे ख्याल से दूसरे मुल्कों में देखो तो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्रियाँ काफ़ी हमसे ज़्यादा बड़ी हैं, और मैं हमेशा हैरान होता हूँ कि जो थोड़ा कुछ हमने कर लिया है वो ही कर पाए हैं। इसके लिए हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेट्स को ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन दूसरी बात है कि ये सारी डिबेट्स मतलब एक तरह से हवा में हो नहीं सकते। अगर हम चाहते हैं कि तुर्कमेनिस्तान से एक पाइपलाइन आए जो हमें गैस लेके आए, तो वो तभी हो सकता है कि जब अफगानिस्तान में हालात उस स्तर पे पहुँचे जब पाइपलाइन के वर्कर वहाँ पाइपलाइन बना सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान के थ्रू चाहते हैं कि एक पाइपलाइन ईरान से गैस लाए, तो हमारे रिश्ते पाकिस्तान से ऐसे होने चाहिए कि हम उन पे एतबार कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं कि ये गैस आते रहेगा और कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। तो ये ट्रेड इश्यूज, सिक्योरिटी इश्यूज से अलग नहीं किए जा सकते हैं। ऐतिहासिक तौर पे हमें समझना चाहिए मेरे ख्याल से कि
जबकि कहा जाता है कि ट्रेड से मुल्कों के रिश्ते बेहतर होते हैं, इस बात में सच्चाई है, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि पहले वर्ल्ड वॉर के पहले दुनिया काफ़ी ग्लोबलाइज थी, ट्रेड लेवल ऐतिहासिक हाई पे थे, लेकिन फिर भी एक जंग हुई जिसमें पूरी दुनिया की हालत ख़राब हुई। तो ट्रेड और सिक्योरिटी इश्यूज ऐसे अलग नहीं किए जा सकते, ये जुड़े हुए हैं। और मेरे ख्याल से एक सफल फॉरेन पॉलिसी के लिए गवर्नमेंट के सारे एलिमेंट, सिर्फ कॉमर्स और फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं, लेकिन मिलिट्री, एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होना चाहिए इनको सफल बनाने के लिए, जो अभी तक ज़्यादा नहीं रहा है। पुरी साहब, जो प्रवीण पॉइंट बना रहे हैं उसे बस आगे लेते हुए वो सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो एक कोहेरेंस की बात हो रही है, आपको लगता है कि जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं भारत के, वो कई बार या तो डोमेस्टिक कारणों से या पॉलिटिकल कारण आप उनको बोल सकते हो, स्टेट्स के कई अपने अपने एजेंडाज होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हाल ही में है श्रीलंका के साथ या फिर वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश के साथ, इनके कभी प्रिजनर बन जाते हैं कि भारत कुछ करना चाहता है लेकिन इतने सारे डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं जो आगे नहीं बढ़ने देते हैं। देखिए, जब तक अंदरूनी स्थिरता नहीं होगी, आर्थिक सामाजिक सुरक्षा के बेसिस पे, तब तक विदेश नीति अच्छी नहीं हो सकती, अच्छी तरह चलाई नहीं जा सकती। रही बात फेडरल पॉलिटी की, ये समस्याएं तो उठती रहेंगी, इसके लिए एडवांस कंसल्टेशन की ज़रूरत है, लेकिन उसमें हमारी जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसका असर ज़रूर पड़ता है। और आप कह सकते हैं कि शायद ये ठीक तरह हैंडल ना किया गया हो, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि हैंडल किया गया, लेकिन जिसने आगे पहले रजामंदी दी, बाद में उसको विड्रॉ कर लिया। तो ये इस तरह की समस्याएं चलती रहेंगी, इससे हमारी छवि पे थोड़ा असर ज़रूर पड़ता है। लेकिन अब देखिए, जो हमारे पार्टनर्स हैं जिनके साथ हम ये करते हैं, वो भी समझते हैं कि ये कई बार हमारी जो अंदरूनी कठिनाइयां हैं, उसकी वजह से विदेश नीति ठीक कर नहीं सकती। की बात आप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि असर पड़ा है, हाल ही में ऐसा लग रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की आप अगर बात करें, क्योंकि हमारी डीलिंग होती है इनसे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो या जो एफडीआई लाकर आना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं भारत में, उनके मन में ये कंसर्न ज़रूर है कि कल क्या ये पॉलिसी बदल जाएगी, कंसिस्टेंसी रहेगी या नहीं। ये एक सीरियस कंसर्न है, वाजिब कंसर्न है। देखिए, कंसर्न तो है, कितना सीरियस है उस पर दो राय हो सकती हैं, और मेरी राय है कि इतना सीरियस नहीं है। असल में इस वक्त सारे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी है, और हो क्या रहा है कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अब इन देशों में वापस जा रही है। जैसे अमेरिका में ग्रोथ इम्पेटिसेस बढ़ेंगे, जापान में बढ़ेंगे, तो इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, तो वो उन देशों में वापस जाएगी। इसमें असर ज़रूर पड़ा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म असर मेरे लिहाज से नहीं पड़ेगा जी। क्योंकि जैसे वोडाफोन का केस ले लीजिए आप, उसमें सरकार ने वोडाफोन को कई ऑफर दिए हैं रिकन्सिलिएशन के लिए, और मुझे लगता है उसके लिए कोई उपाय निकल आएगा। जी, आइए वैद्यनाथन साहब, आपके पास आएंगे एक सवाल लेकर के। वो ये है कि कहते थे पिछले दिनों में हम कि भारत अब ग्लोबल हाई टेबल पे बैठ गया है, लेकिन जब आप बाहर के बिजनेसमैन से बात करते हैं और पिछले दिनों का जो माहौल और जो नैरेटिव भारत से बाहर गया है, उसके बाद क्या विदेशी निवेशकों को भारत के बारे में डर बढ़ा है, एप्रीहेंशन बढ़े हैं, अनसर्टेनिटी बढ़ी है कि यहाँ कैसे बिजनेस करें, अपॉर्चुनिटी है फिर भी नहीं कर सकते? क्या फीडबैक है जो हमको यहाँ एमईए के आला अफसरों को देना चाहिए? See, I think the point was made earlier. The concern is about consistency in policy. There is a difference between the portfolio investor view of India and a foreign director investor view of India. Let's focus on the foreign direct investor view of India. The foreign director investor view of India is coming into this market with a very long term, 7, 10, 15-year perspective. Now, he needs to see policy consistency. And the only way you can communicate that is by not only stating the law, but the intent of the law, that the rules of the business are these, and this is the rationale for the rules of the business. So I think that's one thing that really needs to be addressed. The second, the outside view of India is actually relying on very limited information. So we need to invest in research institutions, think tanks, who will write alternate policy papers, research-based papers, case studies, which will go out to create the right positive environment as well. I think that's something that would be much appreciated by people. The third area where I think
is we've done, if you recall, we've done the big thing that even though the central government changed from an NDA to a UPA, there was a certain level of consistency seen in external affairs. The newer problem. Point taken, वैद्यनाथन साहब, यहाँ पर क्योंकि हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं तो मुथुरामन साहब से भी राय ले लेते हैं। मुथुरामन जी, आपके मुताबिक सरकार को क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? ऐसा क्या किया जाए ताकि विदेश नीति के जरिए भारत की आर्थिक नीति को और मजबूत किया जा सके और भारत आर्थिक क्षेत्र में और ताकतवर हो? जैसे कि वैद्यनाथन साहब कह रहे हैं कि थिंक टैंक्स होने चाहिए, जो ट्रेड रिलेशंस की कोशिश प्राइवेट सेक्टर कर रहा है उसको बूस्ट मिले। For example, when you decide a foreign policy of a country, like India for example, what India needs in terms of economic growth needs to be put first. For example, India does not process great natural resources. India doesn't have coking coal, for example. It is available in Australia and Brazil and Indonesia and so on. India does not have oil. It is available in specific pockets in the world. India doesn't have technology in many areas. It doesn't have technology in defense and a few other areas. And therefore, but there are countries which possess these in abundant measure. There are countries which are fairly advanced in many of these in good measure. And therefore, the Indian foreign policy with those specific countries have to be tailored to meet the objective of getting those into this country. That's what I mean. बिल्कुल, इंडिया का सबसे बड़ा रिसोर्स शायद हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। लेकिन हम लेंगे एक ब्रेक। यहाँ पर लौट के हम बात करेंगे कि किस तरह इंडिया अपनी साख बना पा रहा है दुनिया में। ये तो इकोनॉमिक ट्रेड की बात करी, लेकिन कैसे हमें व्यू करती है बाकी दुनिया। लौटेंगे जल्दी। स्वागत है आपका फिर से हमारे फॉरेन पॉलिसी क्लासरूम में। अब यहाँ पर बात करना चाहेंगे अकबरुद्दीन साहब कि दुनिया हमें कैसे देखती है। यहाँ पर क्रिटिसिज्म कभी कभी आती है कि भारत के जो व्यूज़ हैं वो आगे एक स्ट्रॉन्ग तरीके से क्यों नहीं रखती। अब अमेरिका का जो स्नोडन इशू है, स्नूपिंग इशू है, वो एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट हो गया है। कई देशों ने आकर बहुत सारा कुछ बोला है, लेकिन ये निंदा होती है भारत की कि क्यों ना हम एक बहुत ही फर्म तरीके से अपनी बात रखते हैं, क्या हम दबते हैं। ये एक इम्प्रेशन क्यों जा रहा है? चलिए लेते हैं इसी मुद्दे को, स्नोडन के मुद्दे को। इसमें दो पहलू थे। एक पहलू था कि जो स्नोडन ने कहा कि मेटाटेक्स्ट जो जा रहा है, ईमेल सारे वो चेक हो रहे हैं। दूसरा पहलू था जो कुछ ही दिन बाद अभी पता चला है, वो था स्नूपिंग ऑफ एम्बेसीज। तो चलिए देखते हैं इसमें हमारा क्या जवाब था और आप समझें कि क्या हमने इसमें तुरंत जवाब दिया या नहीं। पहला पहलू ये मेटाटेक्स्ट के बारे में। बात तो ये है कि ये एक टेक्निकल मामला है और हम डिप्लोमेट्स या कोई और समझ नहीं सकते। इसको सिक्योरिटी एक्सपर्ट समझना चाहिए। तो हमने क्या कहा, जैसे ये मुद्दा निकला हमने कहा कि भाई अगर ये बात सच हो कि हिंदुस्तानी प्राइवेट सिटीजन्स के ये ईमेल्स चेक किए जा रहे हैं तो हम इसे बड़ी सीरियसली लेंगे और एक फोरम है हमारा साइबर सिक्योरिटी डायलॉग जो अमेरिका के साथ है, हम उसमें डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल मुद्दा है और ये अभी भी हमारी व्यू है कि जब भी ये साइबर सिक्योरिटी डायलॉग होगा ये मुद्दा हम ज़रूर उठाएंगे। दूसरा मुद्दा था एम्बेसी का इंट्रूसिव मॉनिटरिंग। हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई जिस दिन ये पता चला उसके 2 दिन में हमारे राजदूत जो हैं चार्ज अफेयर्स अमेरिका में वो गए स्टेट डिपार्टमेंट में और ये मुद्दा बड़ी ज़ोर से उठाया और फिर यहाँ पर भी हिंदुस्तान में उठाया। बात तो ये है क्योंकि आप लोगों को आप नहीं चाहते हैं कि ये बात बढ़े तो ये मुद्दा मीडिया में ज़्यादा प्रमोट ही नहीं हुआ, लेकिन हमने ये मुद्दा बहुत ही सॉलिड तरीके से उठाया। वक्त की बहुत कमी है लेकिन 2 महत्वपूर्ण मुद्दे मुझे कवर करने हैं आखिरी के हिस्से में। बिल्कुल 2 मिनट बचा है। अकबरुद्दीन साहब, आपसे एक छोटा सा सवाल है। हमने क्लासरूम इसलिए लगाया कि पब्लिक कन्वर्सेशन में बदलाव आए। हम आपसे समझना चाहते हैं, आप प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के, हिंदुस्तानी मीडिया का, अंग्रेजी अखबार हो या हिंदी अखबार हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, फॉरेन पॉलिसी का कवरेज कैसा है?
हम तो समझते हैं कि जो रीजनल मीडिया, जो लैंग्वेज मीडिया कहते हैं, उसमें जो फॉरेन पॉलिसी की रुचि है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। क्योंकि अंग्रेज़ी अखबार में हम देखते हैं कि स्पेस घट रहा है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने जो देखा है या तो तमिल मीडिया या मलयालम मीडिया, हिंदी मीडिया में जो भी हम बात करते हैं वो ज़्यादा छाई जाती है। ये बात क्यों है? क्योंकि जो लोग अब जो शहरों में नहीं लेकिन दूसरे जगह में रहते हैं, वहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि जो जहाँ पर उनके रिश्तेदार हैं या जो हैं तो वहाँ क्या हो रहा है। तो हमने जो अब इस वजह से विदेश मंत्रालय ने पहली बार तमिल में, मलयालम में, हिंदी में, उर्दू में और बंगाली में प्रेस रिलीज सब उजागर कर रही है। बिल्कुल। आखिरी सवाल व्यास साहब आपसे, प्रवीण ने भी जिक्र किया था बैंडविड्थ का, कैपेसिटी बिल्डिंग का, उसको वैद्यनाथन साहब ने भी टच किया। हमको लगता है कि सबसे बड़ी शिकायत हमको ये होनी चाहिए और हमको लगता है वहाँ स्पीड और अर्जेंसी की कमी है कि जिस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कल्चर और थिंकिंग की ज़रूरत है, जिस प्रकार के इनपुट चाहिए, जिस प्रकार की आगे की तैयारी होनी चाहिए, उसमें हमारे यहाँ कमी है। इसकी भरपाई करने के लिए आप लोगों के लेवल पर क्या हो रहा है? आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा। एक तो मेरे ख्याल से जो फॉरेन पॉलिसी इश्यूज हैं उस पर और ज़्यादा एंगेजमेंट होना चाहिए, थिंक टैंक्स के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, पब्लिक के साथ, स्टेट्स के साथ। आप फेडरल मामला उठाया था। हमारी कोशिश है पब्लिक डिप्लोमेसी के प्लेटफॉर्म पे कि हर स्टेट से इंगेजमेंट हो ऑन द इश्यूज ऑफ इंटरेस्ट टू दैट पर्टिकुलर स्टेट। थिंक टैंक फोरम्स, एक तो इंडिया के अंदर डिबेट, इंगेजमेंट। फॉरेन मिनिस्ट्री ऑल्सो वांट्स इनपुट्स, हमको भी इनपुट्स चाहिए, हमको भी उनका एनालिसिस चाहिए, देखना उसमें हमारा फ़ायदा ही है। और जो हमारे पार्टनर देश हैं, हमारे रीजनल ग्रुपिंग्स हैं, उसमें हमेशा वी हैव मेड इट अ पॉइंट कि एकेडमिक इंगेजमेंट, एकेडमिक फोरम्स मौजूद हों और उसमें एक स्ट्रक्चर्ड डिबेट को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल। ब्रिक्स में कर रहे हैं, इप्सा में कर रहे हैं, हमारा जो इंगेजमेंट है लैटिन अमेरिका के साथ, अफ्रीका के साथ, सभी जगह ये कोशिश है। बिल्कुल। जिस एकेडमिक डिस्कशन की आपने बात की चर्चा के अंत में और इस क्लासरूम के समापन पर, हम यही कहना चाहेंगे कि CNBC आवाज़ की ये कोशिश थी कि यही एकेडमिक बातचीत, जिसको पब्लिक कन्वर्सेशन में माना जाता है कि ये बहुत एक्सपर्ट लोगों की, स्पेशलाइजेशन वाली कुछ लोगों की बात है, जबकि हमारी ज़िंदगियों पर असर पड़ता है, इसको हम आम लोगों तक नज़दीक कैसे ले जाएं और इस कन्वर्सेशन के नैरेटिव को हम, तौर तरीकों को कैसे बदलें, ये हमने अपने चैनल के ज़रिए कोशिश की है। CNBC आवाज़ का उद्घोष वाक्य है, वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा। तो जो नई थीम आने वाली हैं, जो बदलावों की ज़रूरत है हमारे सार्वजनिक संवाद में, बहस में और आगे की तैयारी में, उसी का हमारा एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटी सी ऑफरिंग आपके लिए थी। व्यास साहब, वैद्यनाथन साहब, नलिन सूरी साहब, अकबरुद्दीन साहब, प्रवीण और सब आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में रोड अहेड बताने में आप लोगों ने जो इनपुट दिए, बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।